Good evening, all my fellows, all my students. Today we're going to do some number programs. It's written, but I'll do some mixed programs. A bunch of something which we have already done in QBasic, but we'll learn the pattern of writing in Java. And I have given some homework also. So I expect the homework to be given to me by Sunday. And since we are under a Amphan situation, if you're not being able to submit till Sunday, I'll still consider a week later. There. Now let's continue with the programs, and I hope everyone is good at their place and not having much of power cuts and other situations which everyone is facing at many places. Let's pray for everyone in WB because our state is devastated with this cyclone. And with those prayers, let's start our class. What is our first program? First program is a very basic program. Very basic program, एकदम बच्चा वाला program, because the dose should be given slowly and slightly, right? Write a program to convert days into years. Days into years का formula क्या है? Days divided by 365, तो वो years में convert हो जाता है, ठीक है? तो हमारा पब्लिक क्लास डेज लिखना तो आई गेस सबको आ गया होगा. डेज क्या है हमारा? प्लीज कमेंट. वो डेज जो मैंने लिखा है वो क्या है? एकदम सही बोला आपने कि वो क्लास नेम है, राइट? अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट डेज लिखा है, राइट? तो इंट डेज लिखा है मतलब क्या है? हमें पब्लिक से डेज चाहिए होगा ना, तभी तो हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे. क्यों मैम आपने डबल लिया ईयर्स को? क्योंकि ईयर्स तो डेसिमल में भी आ सकते हैं ना. अगर आपने 12 डाला तो 12 डिवाइड बाई 365 तो डेसिमल में ही आएगा ना करके. तो इसीलिए मैंने 0.00 भी पीछे लगाया है 365 के, और मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, जो कि आप लोग गलती भी करते हैं. मैं भी ये गलती करती हूँ. आप वहाँ पे सेमीकोलन दीजिए. चलिए, एकदम ये हम बेसिक मिस्टेक है ना जो हम लोग करते ही हैं, वो मैं हमेशा करूंगी, ठीक है? तो और एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम छापते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखते हैं. ये सब काम भी आप लोग करते हैं, तो इसलिए मैं भी ये काम करती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए आप ये याद रखिए कि पीछे में सेमीकोलन जाएगा. एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन ईयर्स, मेन का ब्रेस बंद होगा और क्लास का बेस बंद होगा. ये एकदम बेसिक प्रोग्राम में टू ब्रश अप योर माइंड अप. नाउ लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट गियर. We have to enter a number and reverse it. रिवर्स इट मीन्स 65 को एंटर करेंगे तो उसका रिवर्स क्या आएगा? 56 आएगा. अब रिवर्स कैसे करते हैं ना, रिवर्स का पूरा ड्राई रन ना मैंने एक क्यूबेसिक वाला प्रोग्राम में ना बिल्कुल दिया हुआ है आपको. अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप क्यूबेसिक वाला मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, वहाँ पे प्लीज जाइए, थोड़ा मेहनत करिए सर्च करने का, एंड देन यू कैन डेफिनेटली सी द ड्राई रन एंड मेक योर माइंड अंडरस्टैंड कि हाउ इट विल हैपन. Currently I'm just going to explain you in my words, and I'm not going to do any dry run in your right hand side or left hand side of the screen. Public class reverse is again your class name. We'll require a number, so within braces we have written int n. Public static void main, these statements are always the same, nothing is different in these statements. Then int d लिया है एक variable, और int reverse is equals to 0 लिया है. आपको नंबर को 0 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जावा में 0 ही होता है, बट लिखें तो अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? तो और टीचर को भी अच्छा लगता है, तो प्लीज लिखा करिए. अब नेक्स्ट क्या है तुम आपका? while n is not equals to 0, I guess till now everyone is familiar with not equal to का साइन, राइट? नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू. नॉट इक्वल टू 0 means we'll run a loop till 65 becomes 0. Okay, till 65 becomes 0. Where is 65 stored? 65 is stored in the variable called n. Now mod का साइन क्या होता है? परसेंटेज. d is equals to n mod 10. n mod 10 means 65 divided by 10. I will get remainder as 5. 5 will be stored in d. And now I will do reverse is equals to reverse into 10 plus d. Means reverse is equals to reverse. What is the value of reverse? reverse का value ऊपर में initialize किया हुआ है. बताइए मेरे को क्या value है? 0. एकदम सही बोला आपने. 0 into 10. 0 into 10 is 0. प्लस डी में क्या आया? अभी 65 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो डी में आया आपका 5. So that 5 is stored in D. So 0 plus 5. So in reverse now the new value of reverse is 5. If you're not understanding whatever I am saying, you will just write it in the right side of your copy. Okay, reverse is equals to reverse into 10. So 0 into 10 is 0 plus 5. So reverse ka new value is 5. Now n is equals to n by 10. So 65 is equals to 65 by 10. So I am storing 65 divided by 10 ka value in n itself. So 65 divided by 10 is what?
I'll get the क्वेश्चन क्या मिलता है मुझे 6, तो n में क्या स्टोर हो गया 6. Is 6 equals to 0? No, 6 is not equals to 0, so loop will again run. So d is equals to n mod 10. 65 divided by 6 divided by 10 is again 6. So now the value in the reverse is stored as 5. So 5 into 10 is 50 plus d में क्या है 6. हो गया हमारा नंबर रिवर्स 56. Again 6 divided by 10 is 0. So आंसर 0 आएगा. आंसर 0 आएगा एंड अल्टीमेटली हमारा जो भी है आपका ये 0 हो जाएगा और हमारा आंसर रिवर्स में जो है मिल गया हमें 56 और हमें वही हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके विद इन इन्वर्टेड कमांड्स व्हाटएवर वी राइट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड एज इट इज इन द स्क्रीन. द रिवर्स ऑफ द नंबर इज we'll separate it with the plus sign and then we'll write the variable in which the new value of reverse is stored, that is reverse itself. Rev is the variable and close and semicolon. Close the main brace and the class brace. Don't forget to close the braces, otherwise you'll get a case. एक मार्क ऑटोमेटिकली कट जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट है पैलिंड्रोम. सबका फेवरेट था ना क्यू बेसिक में, वापस आया आपके जीवन में. जो जो प्रोग्राम्स आपके फेवरेट थे ना क्यू बेसिक में विल ऑलवेज कम एंड से हेलो इन जावा. Okay, so let's say hi to palindrome. We are meeting after so many days, right? Palindrome था क्या? Reverse of a number. 212 का रिवर्स क्या होता है? 212. अभी तो रिवर्स करके आए ना मैम. हाँ एकदम सही, वही तो है और कुछ नहीं है. खाली एक छोटा सा माइल सा चेंज है. क्या है? मैम ने देखो p इज इक्वल्स टू n किया है, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब 56 रिवर्स के अंदर स्टोर हुआ था तो n का वैल्यू क्या हो गया था? 0. तो हम लोग n के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना उसको. अगर हमें चेक करना होगा वही सेम नंबर मिला कि नहीं मिला तो पहले उस नंबर को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. Okay, so that's why I've used p. Okay, that's why I've used p and I've stored p is equals to n, so that already when before making it 0 I've already taken its value as 212. I've stored it in p and now I'm comparing p is equals to rev because rev has 212 and p also has 212. If they are same then it will print palindrome, else it will print not a palindrome, right? So I hope, and if still you are not getting it, reverse it, rewind the video, you understand reverse and again come over here. Still if you are not understanding, go to the QBasic wala program, number program, understand the see the dry run, it is written very nicely in that program, and then come back to this video again. Okay, now let's see what is perfect number. Perfect number क्या होता है ना कि आप नंबर को डिवाइड करें, you divide 6 and all the variables which are all the numbers which are divisible by this number means if you 6 1 से डिवाइड होता है ना 6 या 2 से डिवाइड होता है ना 6 या 3 से डिवाइड होता है ना 6, हाँ 4 से डिवाइड होता है 6, नहीं डेसिमल में आंसर आता है भाई. 5 से डिवाइड होता है, नहीं डेसिमल में आंसर आता है. 6 तो 6 से डिवाइड होता है बट उसको एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूडिंग द नंबर. ओके, तो the numbers which are divisible with the number excluding the number itself is a perfect number. Okay, दो एग्जाम्पल दिए. ओके, अब नंबर को इनपुट लेना है, यहाँ तक तो सबको पता है. इन 10 करके, राइट? s इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया है हमने. हमें अच्छा लगता है इसको 0 इनिशियलाइज करना, इसीलिए हमने किया है. ओके, आई कैपिटल हो गया, प्लीज मुझे माफ करिएगा, आप छोटा कर दीजिएगा. ओके, अब मैंने फॉर लूप चलाया, मैम को फॉर लूप पसंद था इसलिए. फॉर लूप कब चलाते हैं ये मुझे डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं सबको आके पीटूंगी. हाँ, क्योंकि फॉर लूप कब चलाते हैं और वाइल लूप कब चलाते हैं ये आप मेरे को बताएंगे. ये मैंने आपको वीडियो में बताया था और ये मेरे को कमेंट्स में चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तो पक्का चाहिए. जो ये वीडियो देख रहे हैं और कमेंट नहीं करेगा ना तो मैं घर में आके आपको पीटूंगी वहां पे, क्योंकि आप लोग ये भूल जाओगे. मेरे को पता है कि कब फॉर लूप, क्योंकि आप लोग हमेशा ये पूछते हो मैम व्हेन फॉर लूप एंड व्हेन वाइल लूप. So I had made you understand. So you guys will tell me that when for loop and when while loop. Okay, why I used for loop, you are going to give me the answer. I am not telling the answer. Okay, now let's focus on the program. For int I is equals to 1, I is less than equals to n, I plus plus. Okay, means I am running from 1 to n, means 1 to 6 the loop will run, right? And I am checking 6 divided by 1 is equals to 0. Yes, 6 divided by 1, remainder is 0, right? So I will say s is equals to s plus 1 because I want the summation, right? So I am doing the summation itself. By mistake it has become capital I. Please make it a small I, okay? Because our variable is a small I.
So please do that thing. And then next time I will become 2 and will divide 6 divided by 2. Again it will be divisible. So 1 plus 2 it will become 3. Then again I plus it will become 3. Then 6 divided by 3 it will again be divisible. Then we will actually get 1 plus 2 was already 3 was stored in S, and then it will be 3 plus 3 and it will become 6. Okay, so that and we again 4 will not be divisible. 4 I'll not get the remainder as 0. 5 also I'll not get the remainder as 0 till 6, so it will not run only because I have written less than n, right? Had it written equal to n, I would have got 6 divisible by 6. 6 mod 6 equals to 0, and then I wouldn't have got my answer as perfect number, right? Because my summation would have become 12, because already I have got sum as 6, and 6 plus 6 would have become 12. Yes, you're listening absolutely correct. So that's why we have to run the loop till less than n, right? So keep that in mind when you are writing a perfect number. Again, we'll compare the number n is equals to s, means 6 is equals to 6, then it will perfect number. Any other number is, आगे बढ़ते हैं उसी के साथ और एक हैप्पी नंबर करते हैं, क्योंकि आज सब लोग अफान की वजह से थोड़े थोड़े सैड है, राइट? तो एक हैप्पी नंबर करना तो बनता है. तो इनपुट इज 59 and output is, let me make you understand what is a happy number. Happy number mein what happens is sum of the digits plus product of the digits is equals to the number itself. Means 59 ka sum is 14 and product is 45. 45 plus 14 is 59 itself, right? So that is your happy number. Now there was some logic of initializing the variable when we need to calculate the sum and when we need to calculate the product. ये इनिशियलाइजेशन आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट्स में, ठीक है? छोटी छोटी टेस्ट लेती हूँ मैं कमेंट में, यार इतनी तो कर लिया करो यार मेरे लिए. मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है? मुझे मैं अभी हूँ क्या आपके सामने कि मैं आपका एक्सप्रेशन देख पाऊँ? तो कमेंट कर लिया करो ना. कहाँ 5 सेकंड लगता है कमेंट करने में. और मुझे ना चैनल के व्यूज बढ़ाना, ये करना वो करना कुछ नहीं है यार. मैं एडवर्टाइज भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको इवेल्युएट करने के लिए कमेंट करने को बोलती हूँ. और मुझे ये भी पता चलता है इससे कि आपने वीडियो देखा, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देख सकते हैं ना करके. तो इसीलिए, बाकी नो ऑफेंस टू एनीवन, ओके? आप लोग नहीं भी कमेंट करो तो मैम थोड़ी आके आपका मर्डर करने वाली है. अभी तो अच्छा है ना कोरोना की वजह से, वैसे भी मैं कहाँ मर्डर करती हूँ, राइट? तो चलिए आगे बढ़े. थोड़ी थोड़ी बकवास चलती है ना बीच में, मैं भी बोर हो जाती हूँ पढ़ा के, और आप लोग भी बोर हो जाते होंगे पढ़ते पढ़ते मेरा लेक्चर सुनते सुनते. वैसे छोटे छोटे लेक्चर ही होते हैं यार, बड़े बड़े तो देती नहीं हूँ यार, बोर मत होया करो. डी इज इक्वल्स टू, अब फोकस करते हैं हैप्पी नंबर पे, और हैप्पी नंबर हमारा लास्ट नंबर है, ठीक है? पब्लिक क्लास हैप्पी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट एन, और हम लोग डी चाहिए, हमें एस चाहिए, हमें क्यू चाहिए. देखो हमें डिजिट्स का एब्स्ट्रैक्शन करना है. डिजिट्स का एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो ऐसे ही होता है जैसे रिवर्स करते हैं, खाली रिवर्स वाला वो वर्ड नहीं आएगा. हाँ, और Q को 1 क्यों इनिशियलाइज किया है ये आप मुझे बताएंगे, और P इज इक्वल्स टू N भी क्यों किया है वो भी आप मुझे बताएंगे. क्योंकि P इज इक्वल्स टू N इसीलिए करेंगे क्योंकि लास्ट में ये नंबर 0 हो जाएगा, बिकॉज वाइल N इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाला लूप चला है तो लास्ट में N 0 हो जाएगा. तो जब हमें हैप्पी नंबर के लिए कंपेयर करना होगा इफ में, तब हमारे पास N में कंपेरिजन के लिए वैल्यू ही नहीं होगा, तो इसीलिए P इज इक्वल्स टू N किया है. अब while n is not equals to 0, d is equals to n mod 10 means 59 divided by 10, we'll get remainder as 9, and we will use s is equals to s plus 9 means 0 is equals to 0 plus 9, so we'll store 9, and we'll do q is equals to 1, so 1 into 9 is 9, and again we'll divide 59 by 10, so we'll get quotient as 5, and 5 is not equals to 0, so d will store again 5 in it. Is had already 9 in it, so 9 plus 5 is 14, and q had already 9 in it, so 9 into 5 is 45, and then dn will become 0, which is equals to 0, and we'll exit the loop and we'll have to calculate the sum, right? So we'll have to calculate the sum, so it is 14 plus 45, which will be stored in sum, and we'll compare actually sum with p and not s and q, okay? ये गलती मत करना है, s and q का एडिशन करना है, and then sum जो वेरिएबल है उससे हमें कंपेयर करना है p को, okay? And then if it is equal, it is happy number, else it is not a happy number.
मेरी छोटी मोटी गलतियां माफ करने के लिए आप लोगों का सबका थैंक यू, क्योंकि मैं कभी कभी जब लिख रही होती हूँ तो टाइप कर रही होती हूँ तो कभी कभी मैं सोच कुछ और रही होती हूँ, मैं लिख कुछ और देती हूँ। तो वो छोटी छोटी करेक्शंस आप लोग भी बच्चे ही हैं, आप मेरा करेक्शन मेरा ही खुद कर लीजिएगा। मैं कभी कभी अपना करेक्शन खुद बता भी देती हूँ कभी कभी टाइपिंग एरर भी हो जाता है मुझसे, और फटाफट कर रही होती हूँ ना, क्योंकि घर में भी काम होते हैं, तो इसीलिए हाँ आई नो मैं थोड़ी बहुत वेली भी होती हूँ, बट स्टिल मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस है भाई, कॉलेज की वजह से, थैंक्स टू कोरोना। तो आई नो कि मैं फटाफट कर रही होती हूँ अपने असाइनमेंट्स भी, आप लोगों का ये वीडियो भी हफ्ते में एक ही बार बनाती हूँ, बट स्टिल अभी बहुत प्रेशर है। बट चिल, मैं क्यों रो रही हूँ, आप लोग के ऊपर मेरे से ज्यादा प्रेशर है, इतने सारे असाइनमेंट टीचर्स आपको देते हैं और आप इतने प्यार से मेरा होमवर्क, खुशी में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एंड आई लव यू बिकॉज यू आर गोइंग टू डू माई होमवर्क एंड सी आई हैव गिवन यू 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज एंड वेरी इजी सीरीज। ओके, अगर ये सेम किए हो तो भी बोलना मैम हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं हो सकते, और हमें सम ऑफ द डिजिट्स करना है, और आप प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स भी कर लेना, सम के अंदर ही प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करके दे देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में करके दिया है, वो आप एक बार प्रैक्टिस करने का, विदाउट सीइंग दैट प्रोग्राम यू विल राइट द प्रोग्राम। ओके, और मुझे पूरा यकीन है कोई चीटिंग नहीं करेगा। सीरीज मैंने इसलिए दी है क्योंकि सीरीज मेरी फेवरेट है, और मुझे पता है मुझे आप लोग को भी सीरीज करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कोई भी सीरीज इस बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता तो चले कितना याद है और कितना भूल गए आप लोग अम्फान की वजह से। और जहां तक सवाल है मैजिक नंबर करने का, तो मैजिक नंबर के लिए आप अपनी क्यू बेसिक की किताब खोलिए, आप जाइए, झांकिए या गूगल करिए उसका डेफिनेशन, और फिर मुझे ये प्रोग्राम करके दीजिए। थोड़ा कष्ट आप भी करिए, थोड़ा कष्ट हम भी करते हैं, right? So thank you all for being wonderful listeners and tolerating me for so many days, and you have to tolerate me for few more days, I guess. I don't know how long will the corona last and how long will this devastating cyclones effect will also last, but we can only do is fold our hands and do prayers, and that's it. And I'll not good and with this I'm ending my class. I'm awaiting your homeworks, and I just wanted to conduct a small test, but I just have loyalty issues. Can everyone be loyal to me and give that test? Then I'll give you a test paper. छोटा सही सही एक आध दो प्रोग्राम करते हैं ना टेस्ट में, तो मजा आएगा ना, हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। एक आधा घंटा की 40 मिनट्स की टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ मैं, अगर आप चाहें तो। मैं आपको दूंगी वही स्टेपुलेटेड टाइम में पेपर, और उसी स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर आपको पेपर मुझे सॉल्व करके भी देना है। और फिर अगर आप लेट देते हैं, मतलब आप चीटिंग कर रहे हैं तो आई गेस आप आधे घंटे में ही सॉल्व कर लेंगे, अगर आप चाहें तो ही, क्योंकि मैं आप बिना आपकी मर्जी के कुछ नहीं करना चाहती, यू नो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज इट्स योर लॉयल्टी केस ना। सो ये छोटी वाली अगर आप विदाउट मी एग्जाम देंगे तो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो मैं प्रोग्राम्स लिख ही रही हूँ, मुझे आते हैं ना, थोड़ी बहुत गलतियां तो मैं भी करती हूँ, बट मुझे आते हैं करने ना, इतने तो आप लोग मुझे पे कॉन्फिडेंस है ना आप लोग को मुझ पे, तो हम लोग बात कर सकते हैं इस बात पे। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप अपना इंटरेस्ट मुझे डेफिनेटली पिन करिएगा, अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वरना व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है, जिनके पास नहीं है वो कृपा करके मैसेज कर ले, मैं उन्हें दे दूंगी, कमेंट मतलब या मेल कर ले, तो क्वेश्चन पेपर मैं दे दूंगी अगर आप चाहें तो, बट सबको एक साथ टेस्ट देनी है, ऐसा नहीं है ना, वीडियो तो आप अपनी मर्जी से करते हैं बट टेस्ट तो आप अपनी मर्जी से नहीं दे पाएंगे ना, सब लोग एक साथ अग्री करेंगे तभी मैं टेस्ट लूंगी, मैं एक जन के लिए टेस्ट नहीं लेने वाली तो इसीलिए आप खुद तो टेस्ट दीजिए, बट अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस करिए कि भाई तू भी टेस्ट दे, तभी टेस्ट होगी। ओके, और कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करना होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं दिखना चाहिए मुझे, मैं सबका चेक करूंगी टेस्ट देते समय ओके क्योंकि मेरे पास 100 बच्चे नहीं है कम ही है, ठीक है। तो चलिए 5-6 जन को तो मैं भी स्टॉक कर सकती हूँ व्हाट्सएप पे जब एग्जाम चल रही होगी, ठीक है। तो चलिए थैंक यू ऑल, एंड डू सी टू दिस पॉइंट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली विल टेक अ टेस्ट एंड विल डू लिटिल बिट मोर टाइम पास। ओके, चलो थैंक यू, बाय।